Come, let's make learning a trend through Notopedia along with Sunil Kumar. In this video lecture, we are going to discuss how to solve a problem on PERT using the dummy activity and how we can find out the probability of completion of any particular project where question within a specific time we need to construct a network diagram, and also we need to determine what is the probability of completing a project within 27 days and 32 days. For the given question, we have a specific set of data. Now, as we know, PERT is a probabilistic model. Why we call it as probabilistic model? इसका बहुत सिंपल सा रीज़न है क्योंकि किसी भी एक्टिविटी के लिए कितना टाइम चाहिए उसे कंप्लीट करने के लिए ये एग्जैक्टली हमें पता नहीं है, ना ही हम इसे एस्टिमेट करते हैं. सो फॉर दिस वी हैव 3 पॉसिबल टाइम फ्रेम्स. वो पॉसिबल टाइम फ्रेम्स क्या क्या है? पहला, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम एंड मोस्ट लाइकली टाइम. So these are the 3 time frame what we have. Now if you see the particular question, again we have few activities like A, B, C, D, E, F, G, H, I and J. उसी के करस्पॉन्डिंग हमारे पास प्रीसीडिंग एक्टिविटीज भी दिया हुआ है. और हर एक्टिविटी के लिए ऑप्टिमिस्टिक टाइम दिया है, पेसिमिस्टिक दिया हुआ है, मोस्ट लाइकली टाइम दिया हुआ है. ऑप्टिमिस्टिक मतलब कि जो हम एज्यूम करें कि कितनी जल्दी से जल्दी हम अपना प्रोजेक्ट और टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं, बीइंग ऑप्टिमिस्टिक. पेसिमिस्टिक मतलब कि कितना मैक्सिमम टाइम हमें उस काम को कंप्लीट करने के लगे सकता है, एक एस्टिमेशन, एक प्रोबेबिलिटी के लिए बेसिस पे. सो उसको हम कहते हैं पेसिमिस्टिक टाइम. और मोस्ट लाइकली इज समथिंग कि हम उस पुराने एक्सपीरियंस के बेसिस पर हम एक एस्टिमेट कर रहे हैं कि हमारे इतना टाइम जनरली लगता है, सो इतना मैक्सिमम चांसेस है कि इसके आसपास कहीं हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है. सो ये 3 टाइम फ्रेम हमें दिया हुआ है. इन तीनों टाइम फ्रेम को यूज़ करते हुए हमें PERT को अप्लाई करना है, एंड देन वी नीड टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट. सो फॉर दिस द ऑलवेज माय फर्स्ट टास्क इज to find out the expected time, that is the calculation of expected time. Now expected time कैसे निकालेंगे? expected time निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है, that is T0, that is optimistic time, plus 4 times of TM, TM is most likely time, plus TP, TP is your pessimistic time, and then divide this by 6, then divide this by 6, right? So by using same formula we can find out the expected time of completion for each activity A, B, C, D, E and so on. So let's take one example. First activity, how we can find out the expected time. So the expected time, if you see, what for the activity A, the optimistic time is 2, and as per the formula 4 multiplied by the most likely time. What is the most likely time? Is 4, so that is 4, and then the pessimistic time, that is 6, so it is 6. So the total, it will give you 24 upon 6, right? 24 upon 6, so which is equal to 4. So my first expected time for the first activity is 4. Now similarly, using the same step for each different activity, we can find out the expected time for all the activity which has been performed. So if I will find out, so for the activity B, if I in the same pattern I am finding out expected time, तो B activity के लिए आया हमारे पास 3, C के लिए 6, D के लिए 5, E के लिए 5, F के लिए 4, G के लिए 8, H के लिए 7, I के लिए 3 एंड J के लिए 9. सो ये अब हमें मिल गया है एक्सपेक्टेड टाइम कि हर एक्टिविटी इतना, लगभग इतना टाइम, एक प्रोबेबिलिटी है कि इतना टाइम वो कंज्यूम करेगी.
That is why we call PERT as a probabilistic model, while CPM was deterministic model, क्योंकि वहाँ पे हम सिर्फ एक ही टाइम फ्रेम को यूटिलाइज करते थे. Also, this is your weighted average. We are giving a weightage also, weighted average, right? So once we have identified the expected time, the next thing what we need to find out is the variance for each activity. How we are going to calculate the variance? So variance is calculated by the formula. As we know, variance is indicated by sigma square. So it is given as TP, that is pessimistic time, minus optimistic time divided by 6, and then take the whole square of it. So if I will, for example, if I will do it for the first activity, that is activity A, my pessimistic time is 6. Pessimistic time is, see if you can see here, and then optimistic time is 2. That is optimistic time, and then divide by 6 and take the whole square. So which is coming to 0.444. So that is where similarly we can find out for activity A, B, C, D, and for all the activities which is there in the problem for the project what we are doing it, right? So that is how we need to find out the variance for all the activity. So point is very clear. When we are doing for the PERT, since we don't have one particular set of expected time duration for each activity, we have 3 different time frames, and then from these 3 time frames we need to find expected time. Expected time निकालने के बाद मुझे है हर एक एक्टिविटी का उसका वेरिएंस निकालना है. Once I have identified variance, I need to develop the network. Now if you see, now the durations which is considered over here is the expected duration, that is TE what we have calculated, right? So these expected duration we have considering for the network design. Now forget about the pessimistic, optimistic, and most likely. Now work on expected time. Now the first activity will start from the node 1 always. Now if you see which all activities which is having no preceding activity, वो कौन कौन सी activity है जिससे पहले कोई भी activity perform नहीं हो रही है? A, B, E and F. So that means node 1 से 4 activities निकलेंगी. Activity A, activity B, activity E and activity F. So these are the 4 activities which are emerging from the node 1. Now if you see the next activity, activity B, C, B, C, G and E. These are the activities which are ending individually, while activity D and F, AD and DF are will end at a one common point, and they will lead to the further extension. So for this, we before we name the node, we put the node for A, F and E. We will put the forwarding for B. B के लिए हम आगे proceed करेंगे. So that is node 2. The same way जैसे हम CPM में करते हैं, the same way we will design the network over here also. So B के बाद क्या आ रहा है? C, right? C is the starting from the end point of B. Now C is your will, and C's end point will give you starting point for D. मतलब जहाँ से C खत्म हो रहा है वहाँ से D start होगा, right? Now we can give the node for other activities also, जो कि आपका A, F और E पे end हुआ है. So that is 5, 6 and 7. Now always make sure that with each activities you are writing the duration on the very next. If you see over here, right? Now the next what we have after D and E, the next activity is G. Now G will start from the point where A and D combinedly ends. So A and D कैसे combined end होगा? जब हम यहाँ पे एक
डमी हम ऐड करें, बट उससे पहले वी नीड टू सी जो कि इंडिविजुअल फैक्टर्स है, लाइक द इमर्जेंस ऑफ आई फ्रॉम द ई, राइट। तो उसके आई के आगे कोई भी फर्दर एक्टिविटी प्रोसीडिंग्स नहीं है, सो इसको ये अभी हम नोड नहीं देंगे, बस हम एक एंड पॉइंट पे छोड़ दे रहे हैं। एंड देन वी आर एडिंग ए डमी फ्रॉम 4 to 5. Now this dummy from 4 to 5 gives us possibility to start G. Now how G is, now if you see node number 5, it has a common endpoint for A as well as D with the help of a dummy activity between 4 and 5. So that is will give us an emergence of activity G. Now G के आगे जहाँ पे एंड होगा वहाँ से स्टार्ट होगा H, एंड H के आगे कोई एक्टिविटी नहीं है, तो वो भी एक ऐसे पॉइंट पे जाकर एंड होगा जहाँ पे आगे प्रोसीडिंग्स प्रोजेक्ट एंड हो रहा है। एंड देन वी हैव दैट एक्टिविटी J विच रिक्वायर्स ए कॉमन पॉइंट वेयर D एंड F एंड्स, मतलब J वहाँ स्टार्ट होगा जहाँ पे D और F क्या होगा आके एंड होगा। तो उसके लिए हमने क्या किया है, एक डमी यहाँ पे ऐड किया बिटवीन 4 and 6, राइट। नाउ देयर इज नो एक्टिविटी विच इज लेफ्ट ओवर, अब कोई भी एक्टिविटी बची नहीं है, एंड सारे के सारे जो है वो प्रोजेक्ट के एंड पॉइंट पे जाकर मैच कर रहा है। सो दैट इज अब लास्ट नोड बनाया हमने, नोड नंबर 9। नाउ वंस वी हैव प्रिपेयर दिस नेटवर्क डायग्राम, जैसे नेटवर्क डायग्राम बट ऑब्वियस जैसे हम बनाते हैं सीपीएम में वैसे ही हम बनाएंगे, बिल्कुल कोई उसमें चेंजेस नहीं है। तो नेटवर्क डायग्राम बनाने का पैटर्न सेम रहता है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हमारे पास एग्जैक्ट टाइम नहीं है, जो हमने एस्टिमेटेड टाइम कैलकुलेट किया है उस एस्टिमेटेड टाइम को हम यूज करेंगे ड्यूरेशन कैलकुलेशन के लिए, लाइक वी डू इन योर क्रिटिकल पाथ मेथड। सेम वे वी विल डू in PERT also after making a network diagram to find the total duration of the project using your early start. So we're starting with the node 1. So node 1 the duration is 0. Node 2 after 3 weeks, that is 3 days, the duration is 3. So activity C will start at 3. It will consume time of 6 days. The total time D कब start होगा, 9 days के बाद। 9 days पे वो स्टार्ट हो रहा है डी एक्टिविटी और 5 डे कंज्यूम कर रहा है, तो ये एंड होगा 14 डेज के बाद। सिमिलरली अगर मैं ए के रूट से जाऊँ तो जी कब स्टार्ट होगा, ए के रूट से जाऊँगा तो 4 डेज के बाद स्टार्ट होना चाहिए, बट पॉसिबल नहीं है क्योंकि जी की रिक्वायरमेंट है कि ए और डी दोनों कंप्लीट होना चाहिए। सो जी विल स्टार्ट ओनली आफ्टर 14 डेज। वाइल इफ यू सी द एक्टिविटी I, E and I, so E will start at 0 and complete after 5 days. E will complete after 5 days and I will start after 5 days and end with the last. Now if you see the activity for F, it will start at 0 days, it will consume 4, but the requirement of the activity J क्या है कि D और F दोनों कंप्लीट होना चाहिए, तो D और F दोनों कम कंप्लीट हो रहा है एटलीस्ट 14 डेज के बाद। सो J विल स्टार्ट ओनली आफ्टर 14 डेज, तो अर्ली स्टार्ट टाइम J एक्टिविटी पे 14 डेज होगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट व्हाट वी हैव इज नोड नंबर 8। नोड नंबर 8 मतलब वो एक्टिविटी G को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो G स्टार्ट हो रहा है 14 डेज पे, 8 डे का टाइम कंज्यूम कर रहा है, तो 14 + 8 दैट इज 22। सो 22 डेज के बाद ही अगली एक्टिविटी स्टार्ट होगी, दैट इज H एक्टिविटी। H will start at 22 days, it will consume 7 days, so it will end at 29 days. Now if I will coming through J route, 14 + 9 it will give you 23 days. If I am coming through I route, 5 + 3 it will give you 8 days. जो फॉरवर्ड पास में हम हमेशा जानते हैं कि जो भी मैक्सिमम होता है वो हम कंसिडर करते हैं, सो वी विल कंसिडर द 29 डेज। नाउ वंस वी आर डन विद द फॉरवर्ड पास, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ अर्ली स्टार्ट एंड अर्ली फिनिश टाइम वी विल गो डू द बैकवर्ड पास। बैकवर्ड पास क्यों करते हैं, क्योंकि जो डिफरेंस होगा लेटेस्ट स्टार्ट और अर्ली स्टार्ट का यही हमें देगा क्रिटिकल पाथ। सो इसलिए बैकवर्ड पास पहले फॉरवर्ड पास करेंगे, उसके बाद बैकवर्ड पास का उतना ही
इम्पॉर्टेंस है. So when we go with the backward pass, we'll start from the latest finish. So once we are starting with latest finish, that is the duration is 29 days and 29 days for early finish and latest finish. Now reverse order, same way, the way we do in the critical path method. So we'll first go to the node number 8. So that is 29 minus 7, again it will become 22. Moving back to node number 5, that is 22 minus 8, that is 14. Now since if you see the node number 4 and node number 6 has two different routes to reach, but route number 7 has only one route to reach out. So first we will consider node number 6. So that is 29 minus 9, so that is 20. And then node number 7, that is 29 minus 3, that will give you 26. So node number 7 पे अगर reverse order पे आए तो 26 days is required to complete. Then is node number 4, क्योंकि दोनों ही मोड मूवमेंट से, चाहे हम नोड नंबर 5 के थ्रू आए चाहे नोड नंबर 6 के थ्रू जाए, दोनों रास्ते से जाएं तो कितना टाइम लगेगा. नोड नंबर 5 से आएंगे तो हमें लगेगा 14 डेज, और नोड नंबर 6 से जाएंगे तो हमें चाहिए 20 डेज. एज वी नो इन बैकवर्ड पास हम हमेशा मिनिमम वैल्यू कंसिडर करते हैं. सो 14 और 20 में ऑब्वियसली 14 इज स्मॉलर नंबर, सो द value of latest finish will be 14. Now if we see from route number 7, route number 6, route number 4 and route number 5, ये चारों ही रास्ते जहाँ से हम 1 पे जा सकते हैं डायरेक्टली, बट डायरेक्टली हम जा रहे हैं तो A, F और E से पॉसिबल है. बट अगर हम 4 वाले रूट देखें तो अभी हम 3 पॉसिबिलिटीज और हैं. सो विल गो टू नोट नंबर 3. सो 14 minus 5, that will give you 9. 9 minus 6 will give you 3. Now we have last step to reach to the node number 1. So अगर नोड नंबर 5 के थ्रू जा रहे हैं तो 14 डेज का टाइम है. नोड नंबर 2 के थ्रू जा रहे हैं तो 3 डेज है. नोड नंबर F के थ्रू जाएंगे तो 20 minus 4, that is 16. अगर नोड नंबर F के थ्रू जा रहे हैं तो 26 minus 5, that is 21. तो सबसे छोटा कौन सा है? 3. तो 3 minus 3, that is route through route B. 3 minus 3, that is equal to 0. So the early start and latest start both will be equal to 0. Now my network is the distribution of early start, latest start, early finish, latest finish is complete. Now we can identify which is going to be my critical path. अब हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा क्रिटिकल पाथ कौन सा है. जनरल कॉन्सेप्ट इज सेम. यहाँ पे हम क्रिटिकल पाथ के लिए स्लैक वर्ड का यूज करेंगे. नाउ व्हाट इज स्लैक इज? स्लैक इज अगेन इट इज सिमिलर टू योर फ्लोट, जहाँ पे आपका लेटेस्ट स्टार्ट और अर्ली फिनिश जो है दोनों का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. मतलब कि एक ऐसा जंक्शन पॉइंट, एक ऐसी एक्टिविटी जहाँ पे हमारे पास बफर टाइम है किसी भी एक्टिविटीज़ को डिले या जहाँ पे हम उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. नाउ फॉर दिस टू फाइंड आउट द क्रिटिकल पाथ, व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू चेक ऑल दोज पॉइंट जहाँ पे लेटेस्ट स्टार्ट और अर्ली स्टार्ट सेम हो. सो ऐसा कौन कौन से जंक्शन है? पहला जंक्शन नोड नंबर 1, then is node number 2, node number 3, अगर आप देखें दोनों सेम है. नोड नंबर 4 जहाँ पे लेटेस्ट स्टार्ट और अर्ली स्टार्ट के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है. नोड नंबर 5, नोड नंबर 8 एंड नोड नंबर 9. तो ये जितनी नोड्स हैं जहाँ पे इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, जहाँ पे मेरा फ्लोट और स्लैक 0 है. इसके अलावा 2 नोड और है हमारे पास, नोड नंबर 6 एंड नोड नंबर 7. नोड नंबर 6 में लेटेस्ट स्टार्ट और अर्ली स्टार्ट के बीच में डिफरेंस है 6 का. नोड नंबर 7 पे भी 21 का डिफरेंस है. दैट मीन्स
नोड नंबर 6 और नोड नंबर 7 मेरे क्रिटिकल पाथ का हिस्सा नहीं होंगे। सो अल्टीमेटली मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा जो क्रिटिकल पाथ है वो कौन सा होगा, वो है नोड नंबर 1 जो कि बी एक्टिविटी के थ्रू नोड नंबर 2 पे जा रहा है। देन नोड नंबर 2 से नोड नंबर 3 जा रहा है एक्टिविटी सी के थ्रू। नोड नंबर 3 से नोड नंबर 4 जा रहा है डी के थ्रू। नोड नंबर 4 से नोड नंबर 5 पे जा रहा है राइट, एक डमी एक्टिविटी के थ्रू। नोड नंबर 5 से नोड नंबर 8 की तरफ जा रहा है एक्टिविटी जी के थ्रू। एंड देन 8 से लास्ट एंड पॉइंट पे जा रहा है थ्रू एक्टिविटी एच। सो दैट मीन्स नोड 1 2 3 4 5 8 एंड 9 ये जो नोड्स हैं ये मेरा क्रिटिकल पाथ का हिस्सा है। और इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, वो है बी सी डी जी और एच। ऑलवेज कीप इन माइंड कि जो भी क्रिटिकल पाथ है उसको हम हमेशा हाईलाइट करें, उसको थोड़ा सा बोल्ड कर दें या फिर डबल लाइन कर दें। सो वी कैन say my critical path is B, C, D, G and H. So these are my critical path. And then my project duration क्या होगा, तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कैसे निकालते हैं, जो भी ड्यूरेशन हर एक्टिविटी का है उन ड्यूरेशंस को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। सो बी का है ड्यूरेशन मेरे पास 3 डेज का, सी का है 6 डेज का, डी का है 5 डेज का, डमी तो 0 होता है एज वी नो, जी के लिए है 8 डेज एंड देन एच के लिए है हमारे पास 7 डेज। सो ऑल टुगेदर इट विल मेक 29 डेज। दैट मीन्स इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमें 29 डेज की आवश्यकता है। अभी हमने प्रोजेक्ट कैशिंग की बात नहीं करी है। नाउ दिस इज नॉट द एंड, क्योंकि हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी कि क्या प्रोबेबिलिटी के जो प्रोजेक्ट है वो 27 दिन में हम कंप्लीट कर सकते हैं या हो जाएगा। ये एक एस्टिमेटेड है मेरा कि 29 डेज में होना चाहिए, बट इसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि मैं प्रोजेक्ट को 27 दिन में कंप्लीट कर सकता हूँ, या इसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि मैं अपना प्रोजेक्ट 32 डेज में कंप्लीट होगा। सो इसके लिए हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है यहाँ पे वेरिएंस, जो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है। नाउ वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट आप स्टैटिस्टिक्स में पढ़ चुके होंगे। एंड देन व्हाट इज द इंपॉर्टेंस इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग आउट द प्रोबेबिलिटी थ्रू स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो हाउ वी आर गोइंग टू कंसिडर दिस वेरिएंस, तो इसमें वेरिएंस में क्या हम ये सारे वेरिएंस कंसिडर करेंगे या इसमें कुछ वेरिएंस कंसिडर करेंगे, तो इनमें से हम सिर्फ उन्हीं वेरिएंस को कंसिडर करेंगे जो कि मेरे क्रिटिकल पाथ का हिस्सा है। दैट मीन्स वेरिएंस ऑफ एक्टिविटी बी, वेरिएंस ऑफ एक्टिविटी सी, वेरिएंस ऑफ एक्टिविटी डी, वेरिएंस ऑफ एक्टिविटी जी, वेरिएंस ऑफ एक्टिविटी एच, क्योंकि इसके अलावा कोई भी एक्टिविटी मेरे क्रिटिकल पाथ का हिस्सा नहीं है। मैं सिर्फ इन्हीं 5 एक्टिविटी के वेरिएंस को कंसिडर करूंगा प्रोबेबिलिटी के कैलकुलेशन के लिए। सो द टोटल वेरिएंस विच इज द पार्ट ऑफ योर क्रिटिकल पाथ इज इक्वल टू 1.5556, राइट। सो वेरिएंस इज गिवन बाय सिग्मा स्क्वायर। सो वेरिएंस के हेल्प से हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इज सिग्मा विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। सो वेरिएंस दिया हुआ है 1.5556, अगर इसका अंडर रूट करेंगे तो हमें वैल्यू आएगी 1.2472। सो हमें क्रिटिकल पाथ का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कितना है हमारे पास, 1.2472। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस standard deviation, how we are going to find out the probability? Now for this we are going to utilize the concept of normal distribution. So normal distribution, that means we are going to use the concept of z test or z score.
Now if I want to find out the probability of completing the project within 27 days, then we need to find out what is Z0 is. So Z का एक normal standard formula है, that is x minus mu divided by sigma. x आपका होता है एक जनरल सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन. बट यहाँ पे इसी चीज़ को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, दैट इज z इज इक्वल टू टी एस माइनस टी ई डिवाइड बाई सिग्मा ई. टी एस क्या है? टी एस है वो स्टैंडर्ड टाइम जिसपे मुझे प्रोजेक्ट की कंप्लीशन कैलकुलेट करना है. और टी ई क्या है? टी इज द एवरेज एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट जो हमने अभी निकाला था, जैसे कि 29 डेज. तो टी एस क्या है जिसपे मुझे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, जैसे कि यहाँ पे दिया है 27 डेज. और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्सपेक्टेड इज कि क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन मेरे क्रिटिकल पाथ का. सो दैट इज यू कैन सी Z स्कोर इज स्पेसिफाइड टाइम दैट इज 27 डेज जिसका हमने यहाँ पे अभी लिखा हुआ ऊपर. एंड देन पाथ मीन दैट मीन्स क्रिटिकल पाथ का जो के थ्रू जो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का ड्यूरेशन है. एंड देन उस क्रिटिकल पाथ की जितनी एक्टिविटीज़ हैं उनका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है. सो इफ आई विल फाइंड आउट, सो Z वैल्यू दैट इज दिस इज माई specified time on which I need to calculate. 29 is my expected what I have calculated, and then standard deviation जो हमने calculate किया variance के through. So यहाँ से हमें एक Z score मिल गया that is minus 1.6035. Now minus 1.6035 का हम करेंगे क्या? इस वैल्यू को हम चेक करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से, Z डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. So जब आप इस वैल्यू को चेक करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में, तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 0.4452. कैसे चेक करते हैं? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे साइन जो है वो है नेगेटिव. नेगेटिव मतलब अगर आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है आपका Z स्कोर का, वो आपको पता है कुछ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हमारा कुछ इस तरह से होता है. एंड देन वी ऑलवेज नो एट द सेंटर पोजीशन द वैल्यू ऑफ Z इज ऑलवेज इक्वल टू 0. सो एनीथिंग विच इज नेगेटिव विल बी मूव टूवर्ड लेफ्ट एंड एनीथिंग विच इज पॉजिटिव इज मूविंग टूवर्ड द राइट. सो वैल्यू इज ऑफ Z इज 0 ओवर हियर, बट द प्रोबेबिलिटी इज 0 ओवर here, right? And we know this is my 50% and this is my 50%. So that is 0.5 probability on this side and 0.5 probability on this side. So minus का मतलब हमें इस ओरिजिन इस सेंटर पॉइंट से इधर मूव करना है. So टेबल से हमें मिल गया है 0.4452. So टेबल के इधर आपका probability कितनी है? 50%. So वो what is the probability that it will get completed within 27 days is 0.5 minus 0.4452. So which is equal to 0.548. Right? Now we are getting the value in term of probability. So we can say that the probability of completing the project in 27 days is 5.48%. 5.48% कि 27 दिन में ये मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 5.48%. नाउ सेकंड कंडीशन हमारे पास था कि क्या पॉसिबिलिटी है कि मेरा प्रोजेक्ट जो है वो 32 डेज में कंप्लीट हो जाएगा. अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि अभी हमने कैलकुलेट किया 29 डेज में कंप्लीट हो रहा है, तो फॉर श्योर है कि ये 100% है कि 32 डेज में तो हो ही जाएगा. बट मैं आपको ये बता दूं कि पहले हमने कहा है ये प्रोबेबिलिस्टिक है. स्टार्टिंग में भी एक्सपेक्टेड टाइम निकालने के लिए हमने 3 चीज़ पर डिपेंडेंट है, ऑप्टिमिस्टिक, पैसिमिस्टिक एंड मोस्ट लाइकली टाइम पे. इसलिए भी ये ज़रूरी नहीं है कि 100% श्योर नहीं है कि 32 डेज में भी हो जाए. लेट्स सी क्या होता है.
Again, formula will remain the same. Now instead of specified time 27, यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे 32. बाकी सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड टाइम 29 विल रिमेन सेम एंड द वेरिएंस विल रिमेन सेम. तो जेड स्कोर जो आएगा हमारे पास वो है 2.4053. नो अगेन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से अगर मैं जेड की वैल्यू देखूँ चेक करूँ तो इसकी वैल्यू कुछ आएगी 0.4918. सेम पैटर्न अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था. जेड वैल्यू जो सेंटर पे है जीरो होती है, राइट साइड में पॉजिटिव है, राइट. सो मतलब कि हम 0.5 के आगे मूव करेंगे. सो आगे मूव करेंगे, दैट इज वाई वी विल एड दिस वैल्यू 0.4918 इंटू 0.5. ना जब हम 0.5 वैल्यूज में ऐड करेंगे तो टोटल आया हमारे पास 0.9918. इसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब ये है द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट इन 32 डेज इज 99.18%. कि 32 दिन में मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी है 99.18%. देखिए अभी भी 100% नहीं आया, 100% अभी भी हम श्योर नहीं है, क्योंकि वी नो बिजनेस सिनारियोज प्रोजेक्ट इज सो अनसर्टेन. अनसर्टेनिटी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इन्वॉल्व होती ही होती है. एंड जितने भी टाइम फैक्टर्स लिया है वो हमने एक्सपेक्टेड लिया है, राइट. सो सेम वे वी कैन चेक फॉर our possibilities of completion of project for any number of days using their PERT evaluations. So that is how we apply the project estimation and the time of completion of those project using the PERT. Thank you for being the part of the learning process. Please write your comments and the query in the comment box. And stay connected, stay tuned for more such learning sessions.